ایک سایہ سا گرم چادر اوڑے اس پر جل ملاتے کمرے سے باہر کسی چوکی پر اکڑوں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شادو نے بتایا کہ شیشے والے کمرے میں غائب سائیں رہتا ہے، دوسرا کمرہ اس کے ہاتھ خلیفہ اور دیگر چیلے جان ڈکا تھا۔ کچے برآمدے میں عام عقیدت مند آ کر ٹھہرتے تھے۔ اس ٹیلے کی بلندی سے دور تک نظارہ ہو سکتا تھا۔ یہاں سے بہت دور دونوں طرف کے سرحدی ٹاورز کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سرگوشی میں طارق سے کہا، ریتلی جگہ پر سرنگ کوئی آسان کام نہیں ہے، بغیر سہارے یہ سرنگ بیٹھنے میں دیر نہیں لگائے گی اور یہاں سے سرحد پار تک تو ناممکن ہے، اس لیے ہونے والا تعمیراتی کام فوراً رینجرز کی نظر میں آ جائے گا۔ ہاں، کوئی طے خانہ ضرور ہو سکتا ہے۔ طارق نے میری بات کی تائید کی۔ ہم چاروں احتیاط سے اوپر آ کر کچے برآمدے کی اوٹ لے کر آگے چلنے لگے۔ اسفند نے سینے کے بال تھوڑا سا آگے جا کر ترپال کے اندر جھانک کر دیکھا، پھر آ کر بتایا کہ اندر دیا جل رہا ہے اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت گہری نیند سو رہی ہے۔ حمزہ نے اپریٹس پر دونوں جوانوں کو اسی راستے کے اوپر آنے کے لیے کہا جہاں سے ہم آئے تھے۔ ان دونوں کے آنے تک ہم نے چادر پوش پر نظر رکھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک سگریٹ جلا لیا۔ وہ غالباً چین اسموکر تھا اور رات کے اس پل غائب سائیں کے دروازے کے باہر خدمت گار کے طور پر موجود تھا۔ اسے راستے سے ہٹائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ حمزہ نے آبزرویشن پوسٹ والے کو اوپر آنے کے لیے کہا۔ اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین ایک ہی تھی۔ کچھ دیر میں دوربین بھی آ گئی۔ حمزہ نے نشانہ لیا، فضا میں سرسراہٹ سی ابھری اور بے ہوشی کے زرد اثر ماحول سے بھرا ہوا ڈاٹ چادر پوش کی گردن میں اتر گیا۔ اس نے تیز جھرجھری لی، پہلے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے گرا، پھر وہ خود ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے اور طارق نے بے آواز زکن بڑی اور خلیفے والے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حمزہ اور اسفند غائب سائیں کے دروازے پر رکے تھے۔ میں نے دروازے سے کان لگایا، دوسری طرف سے ہراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ حمزہ نے ہمیں اشارہ دے کر قریب بلایا۔ ہم قریب گئے تو اس نے دروازے کی باریک سی جری سے کان لگانے کے لیے کہا۔ اندر شاید کوئی دیا جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی اس جری سے باہر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ طارق نے بھی کان لگایا۔ اندر سے نسوانی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، پھر ایک باری سی مردانہ آواز بھی ابھری۔ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس سے یہ بات ضرور ثابت ہو گئی تھی کہ محترم غائب سائیں کسی مجبور عقیدت کی اندھی عورت کے ساتھ رات رنگین فرما رہے تھے۔ دوربین کی مدد سے ٹیلے کی دوسری سمت کا جائزہ لیا گیا۔ اس طرف بھی دو افراد ڈیوٹی پر تھے۔ اسفند اور حمزہ نے جا کر انہیں بھی شکار بنایا۔ وہ زیادہ آسان شکار ثابت ہوئے تھے۔ ان کی توجہ نیچے کی طرف تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اوپر سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیک اپ دینے والے دونوں جوانوں کو بھی قریب بلا لیا گیا۔ دوربین لانے والے کو حمزہ نے ہدایت دی کہ کچے برآمدے میں سوئی عورت اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے دونوں دروازوں کا جائزہ لیا۔ وہ عام لکڑی کے دروازے تھے۔ دو افراد کی ٹیم نے بیک وقت دوڑ کر دروازوں کو ٹکر ماری۔ دروازے یہ ٹکر برداشت نہ کر سکے۔ میں اور اسفند دروازہ توڑتے ہوئے خلیفے والے کمرے میں گرے تھے۔ دوسرے دروازے کو دونوں جوانوں نے ٹکر ماری تھی۔ طارق ٹارچ جلا کر ہمارے پیچھے آیا تھا اور حمزہ دونوں جوانوں کے پیچھے۔ کمرے میں موجود افراد اس ناگہانی افتاد سے بری طرح گھبرا کر ہذیانی انداز میں چیخنے لگے۔ دوسرے کمرے سے نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ اس کمرے میں 3 افراد تھے جو چند لمحے پہلے لحاف اوڑے سو رہے تھے۔ جارجن کار داڑھی مونچھوں والے یہ تینوں سانڈ کی طرح پلے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ لحاف ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ میری طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے کسی تیز دار آلے کی چمک دیکھی۔ گولی میں چلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا۔ تیز دار آلہ میرے سر کے اوپر سے بالوں کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اس شخص نے دیوانگی کے انداز میں ایک نعرہ لگایا اور دوبارہ ہاتھ گھمایا۔ میں نے برق رفتاری سے خود کو نیچے گرا کر یہ خطرناک وار بچایا۔ اس موقع پر اسفند نے حاضر دماغی کے ساتھ کمال کی ٹائمنگ سے پاؤں کی ضرب اس خطرناک شخص کے ہتھیار والے ہاتھ پر لگائی۔ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ سے صاف نکل گیا۔ اس کے بعد ہتھیاروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے افراد کو بھی حوصلہ ہوا۔ انہوں نے دیوانوں کے انداز میں ہم پر حلہ بول دیا۔ دوسرے کمرے میں اب کسی مرد کے گرجنے برسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً محترم سائیں کو رنگ میں بنگ ڈالنے والے قطعی پسند نہیں آئے تھے۔ ہم نے ان تینوں کو آڑے ہاتھوں لیا جس نے مجھ پر تیز آلے سے حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کے وار سے بچتے ہوئے جھک کر اسے کمر سے تھاما اور پھر دیوار سے دے مارا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میرا پاؤں پوری قوت سے اس کی ناف پر لگا تو وہ ڈکراتے ہوئے فرش پر لوٹیاں کھانے لگا۔ طارق اور اسفند نے اپنے حریفوں کو لوہے کے وزنی ہتھیاروں سے ضربیں لگائی۔ وہ بھی نیچے پڑے دہائیاں دے رہے تھے۔ میں نے ہنجر کی مدد سے ایک چارپائی کے پاؤں والی سمت کی رسی کاٹی اور ان تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ان کے منہ میں ہم نے کپڑے ٹھونس دیے۔ اضافی رسی کے ساتھ ہم غائب سائیں والے کمرے میں آئے تو وہاں بڑا ہوش ربا منظر تھا۔ فرشی بستر پر ایک گوری چٹی نوجوان لڑکی چادر اوڑے بری طرح رو رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا لہیم شہیم شخص فرش پر مادرزاد برہنہ پڑا ہوا تھا۔ حمزہ وغیرہ کو آنے والے عذاب کی وعید سنا رہا تھا۔ اس کے سارے جسم پر ریچھ کی مانند بال تھے۔ سر اور منہ بے ہنگم بالوں میں چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں نصف درجن کے قریب نگینوں والی مختلف انگوٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ یہی بہروپیہ غائب سائیں تھا۔ پورا کمرہ ٹارچ کی روشنی سے بھر گیا۔ میں نے غصے اور نفرت سے مغلوب ہو کر پاؤں کی ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ اس کی زبان کو فوراً بریک لگ گیا۔ وہ الٹ کر نیچے گرا۔ میں اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا اور بری طرح سے چیخنے لگا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔
इस दौरान एक जवान लड़की को चादर समेत कमरे से बाहर ले आया गया। लड़की ने इधर उधर बिखरा अपना लिबास भी उठा लिया। मेरे कहने पर दूसरे जवान ने घसीट कर साईं को दीवार के साथ बिठा लिया। रस्सी से इसके भी हाथ पांव बांध दिए गए। साईं हाथ मुंह दबाए पुरखौफ नजरों से हमें देख रहा था। इसे अपनी उरियानी का मुतलक एहसास नहीं था। मैंने इसके करीब बैठते हुए कहा, जिन लोगों को तूने राइफलों के साथ पहरे पर बिठाया था वो भी, और साथ वाले कमरे में भी जो तेरे हवारी हैं वो भी, सब के सब बंदे पड़े हैं। चाहता है तो इन्हें मदद के लिए आवाज देकर देख ले। मेरे लहजे ने इसे यकीन दिला दिया कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। इसने हूं थूका और बैठी आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने कहा, तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारे पास वैसे भी टाइम ज़ाया करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए मैंने दोबारा हंजर पिंडली से खींच लिया। साईं की तोंद तेजी से फूलने पिचकने लगी और खून आलूदा चेहरे पर मौत की जर्दी उतर आई। मैंने कहा, अपनी जिंदगी प्यारी है और तूने भी अपना लिहाफ गर्म रखना है तो चौधरी सलामत और इसके साथियों को हमारे हवाले कर। कौन चौधरी सलाम? इसका फिक्रा भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरा हाथ हरकत में है। हंजर निस्फ के करीब साईं की सतून जैसी रान में उतर गया। इसने कर्ब आलूदा चीख मारी। मैंने हंजर वापस खींचा तो वहां से खून का फुवारा उबल पड़ा। बंधा हुआ साईं बिन पानी मछली के मानी तड़पने लगा। मैंने कहा, अनजान बनेगा तो दूसरा खून का फुवारा भी जारी कर दूंगा। खून के साथ साथ जो तेरे वजूद में हबीस रूह बसी है वो भी साथ निकल जाएगी। मेरे लहजे ने साईं के रहे से ख्वास भी गुम कर दिए। मैंने हंजर वाला हाथ दोबारा बुलंद किया तो इसने चीख कर कहा, अपना हाथ रोक, कोई जालिम, कोई इंसानों वाली बात कर। मुझे लगा कि अपना खून देखकर साईं राह रास्त पर आ रहा है। मैंने कहा, इंसानों के साथ इंसानों वाली बात होती है, खोल जुबान। इसके साथ ही मैंने हंजर इसकी टांग के पास रखे गए तकिए पर दे मारा। इज़्तिरारी कैफियत में इसने जिस्म को सुकेड़ते हुए चीख मारी। मैंने कहा, खोल जुबान। साथ ही मैंने हाथ बुलंद किया। हमजा और तारिक वगैरह खामोशी से तमाशे देख रही थे। साईं ने रो देने वाले अंदाज में कहा, ओए मुंह से मांग ले और मेरी जान बख्शी कर दे। इसकी आफर ने मुझे नई राह दिखाई। मैंने कहा, क्या दे सकता है? साईं की आंखों में चमक उभरी। इसने कहा, मुंह मांगा दे सकता हूँ, मगर पहले मेरा खून रोको। मेरे इशारे पर हमजा ने एक नौजवान को कहा तो इसने एक मैला सा रुमाल कस कर साईं की मजरूब टांग पर बांध दी। कदरे मुतमईन होने के बाद साईं ने कहा, हम खिदमत गुजार लोग हैं, किसी का हिस्सा नहीं रोकते। तुम अजनबी हो, अब आगे हो तो बताओ क्या लेकर जान छोड़ोगे? इसने बाल मेरे कोट में फेंक दी। मैंने कहा, हमारा मुंह बहुत बड़ा है, तू छोटा है, इसलिए सीधी बात चौधरी से ही करवा, इससे डील करेंगे। साईं ने जल्दी से कहा, बेशक मैं छोटा हूँ मेरे साईं, फिर भी मांगो तो सही। इन अल्फाज के साथ ही इसने तस्लीम कर लिया कि इसका बराह रास्त ताल्लुक चौधरी से है। मैंने हमजा और तारिक से मशवरे की तकारी की और फिर अपना मुतालबा इसके सामने रख दिया। 10 करोड़, इससे कम पर बात नहीं होगी। साईं के चेहरे पर तरद्दुद झलका। इसने दबी आवाज में कहा, यह कुछ ज्यादा है साईं, आधे कर लो। मैंने कतई अंदाज अपनाया, तुम नहीं जानते चौधरी कितना बुरा फंसा है। इसकी सारी सियासत बल्कि जिंदगी दांव पर लगी है। फांसी का तख्ता इसका मुकद्दर बन सकता है। गायब साईं ने गहरा सांस लेकर कहा, मंजूर है। 10 बक्से तुम्हारे हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था और हम हैरान हो रहे थे कि बज़ाहिर एक जाली पीर ने कितनी आसानी से 10 करोड़ पे देना मंजूर कर लिया है। मैंने कहा, हुए क्या? अभी हमारे हाथ पर रख। साईं ने लजाहत से कहा, साईं थोड़ा टाइम तो दो, मेरे हाथ पांव खोलो, मंगवा देता हूँ आपके बक्से। मैंने कहा, कहाँ से मंगवाओगे? साईं के चेहरे पर तजब्जुब के असरात नजर आए। फिर वो किसी फैसले पर पहुंचकर बोला, मुझे खोलकर थोड़ी देर के लिए इसी कमरे में बंद कर दो, कुछ देर में तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मवक्लूस है, मंगवाओगे पैसे? साईं ने जानदार आवाज में कहा, जहां से भी मंगवाऊंगा आधे घंटे में बक्से मिल जाएंगे। इसका एतमाद दिदरी था। हमें पूरा यकीन हो गया कि इसी कमरे में कोई गड़बड़ है। अगर इस कमरे में कोई तहखाना वगैरह था तो ये इम्कान कभी था कि चौधरी सलामत वगैरह भी जरूर इसी तहखाने में होंगे। मैंने कहा, तू टाइम ज़ाया कर रहा है, मैं जानता हूँ तू हमारा मुतालबा चौधरी सलामत के सामने रखेगा। बेहतर होगा हमारी बराह रास्त डील करवा दे। हमें रकम के साथ मलक गुलशेर की बेटी भी चाहिए। बेटी चौधरी के साथियों के कब्जे में है। इसके साथ ही मैंने मजबूत लहजे में ब्लफ करवाया, हम भी डील करना चाहते हैं, वरना तेरे कमरे को उखाड़ देना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। साईं का चेहरा तारीख तरह होगा। मुझे महसूस हुआ कि तीर निशाने पर बैठा है। इसने गहरा सांस लेकर हथियार डाल दी। ठीक है, मगर पहले चौधरी से मैं बात करूंगा। तू शर्तें रखने की पोजीशन में नहीं। हाँ, ये हो सकता है सिर्फ तेरे लिए मैं साथ चलूं। साईं ने इस पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। चौधरी सलामत वगैरह जिस मुमकिन तहखाने में थे वहाँ यकीनन इनके पास हथियार भी थे। इन्हें तहखाने से निकालना कोई आसान काम नहीं था। वो मोर्चा बंद हो जाते और फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता तो रेंजर्स को यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इनके आते ही सारा खेल हमारे हाथ से निकल सकता था। तारिक और हमजा वगैरह खूब समझ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। साईं के हाथ पांव खोल दिए गए। इसने एक जहम पर एक साफ कपड़ा बांधा और फिर कपाते हाथों के साथ कपड़े पहन लिए। इसके बाद इसने अपना फर्शी बिस्तर समेटकर कमरे का फर्श उरियां किया। नीचे आराइशी टाइलों वाला फर्श था। बिस्तर के गद्दे के नीचे इसने तवील रस्सी का एक फंदा सा निकाला। हम दिलचस्पी से इसकी हरकत देख रहे थे। साईं ने टार्च का रुख छत की तरफ करने के लिए कहा। दूसरी लाइट जलाकर इसका रुख छत की तरफ कर दिया गया। छत के दरमियान लोहे का एक हुक सा लटका नजर आ रहा था। ऐसे हुक अमूमन पंखा लटकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर यहाँ बिजली का नामो निशान भी नहीं था। इसलिए फंदा घुमाकर इसने हुक की तरफ फेंका। तीसरी कोशिश में फंदा इस हुक में फंस गया। इसने रस्सी खींचकर फंदे का हल्का तंग किया और फिर रस्सी को जोर से नीचे की जानब खींचा। हल्की सी गड़गड़ाहट गूंजी, फिर फर्श एक तरफ से स्लाइड हो गया।
चंद ही दिनों में मैं ये तीसरा तहखाना देख रहा था। नीचे मुकम्मल तारीकी का राज था। मैंने टॉर्च लेकर इसका रुख तहखाने की तरफ कर दिया। नीचे बांसों वाली एक सीढ़ी नजर आई। साईं ने दहाने के पास मुंह नीचे करके बुलंद आवाज में कहा, चौधरी साहब मैं नीचे आ रहा हूँ, मेरे साथ एक मेहमान भी है। फौरन ही एक भारी मर्दाना आवाज उभरी, सब हैरियत तो है ना? साईं ने कहा, जी जी हैरियत ही है। फौरन ही नीचे रोशनी होगी। कोई पोर्टेबल लाइट रोशन की गई थी। मैंने पिस्टल बेल्ट में उठा, हंजर पिंडली से बांधा और फिर साईं के पीछे तहखाने में उतर गया। तहखाना हंसा वसी था। सबसे पहले मेरी नजर गत्ते के पेटियों पर पड़ी। वो एक दीवार के साथ दर्जनों की तादाद में एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। इस पर हिंदी लिखी हुई थी। पेटियों पर बने निशानात से मैंने अंदाजा लगाया कि इसके अंदर इंडियन गुटखा है। दूसरी तरफ से कुछ अजनास की बोरियां थी जिनमें से अजीब सी बू आ रही थी। मेरे ख्याल में वो बम की बोरियां थी, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आइटम वहां मौजूद थे। फिर मुझे छोटे कद का स्याह रोह चौधरी सलामत नजर आया। इसकी तस्वीर मैंने इलाके में लगे बैनर पर देखी थी। इसके साथ एक दुबला और बड़ी बड़ी मूछ वाला नौजवान था जिसके हाथ में AK-47 थी। अकब में काशिफ बाजी माली और 2 सैफ भी नजर आ रहे थे। इन सभी के मसले हुए कपड़े और सुते हुए चेहरे से इनकी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मैनेजर हुरम और चौधरी का खास बंदा जहांदाद भी खामोशी से खड़े मुझे घूर रहे थे। मैंने अपना बहरूप खत्म कर दिया। चौधरी सलामत ने आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखा। मेरी बेल्ट में उड़सा हुआ पिस्टल साफ नजर आ रहा था। पिस्टल पर नजर पड़ते ही मूंछों वाले नौजवान ने फौरन AK-47 का रुख मेरी तरफ कर दिया। साईं ने झटक कर इसे राइफल नीचे करने का कहा। थोड़ा ही करीब देखने के बाद अंदाजा हुआ कि इन सभी के पास हथियार थे। ताकि माली के पास भी एक 22 बोर पिस्टल नजर आ रहा था। चौधरी सवालिया नजरों से साईं की तरफ देख रहा था। मेरी तरफ गौर देखते हुए माली ने काशिफ से कहा, जिसके बाद वो कड़े तेवरों से मेरी तरफ देखने लगा। साईं ने चौधरी को एक तरफ ले जाकर खुसरफुसी शुरू कर दी। काशिफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम मलक के ड्राइवर होना, आज कुछ बदले हुए लग रही हो। मैंने अंग्रेजी में कहा, दुरुस्त पहचाना, कुछ दिन पहले मैंने मलक की ड्राइवरी भी की है। अब्बासी का चेहरा बिगड़ गया। याद रखना, गद्दारों को हम कभी माफ नहीं करते। मैंने इससे भी ज्यादा जहरीले लहजे में कहा, अभी इस बहरूपिये की सुनोगे तो मेरे तलवे चाटे लोगे, मुझसे जबरदस्ती माफी मांगोगे। इसके सुरह सफेद चेहरे पर खून ने जोश मारा। इससे ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि चौधरी ने मुर्दा सी आवाज में इसे भी अपने करीब बुला लिया। मुझे घूरता हुआ वो भी इस मीटिंग में शरीक हो गया। मुख्तर मीटिंग ने काशिफ की हवा भी निकाल दी। वो अब मेरी तरफ देखते ही कतराने लगा। अलबत्ता चौधरी कदरे मुतमईन नजर आ रहा था। वो इन दोनों को छोड़कर मेरी तरफ आया। जान जी, इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास चले आते, इतनी हिम्मत करता कि सारे अनुमान निकालता है। जो हो गया सो हो गया। आप लोगों का ताल्लुक किस फोर्स से है? इसका दिमाग चलना शुरू होगा। मैंने कहा, हमारे बारे में जितना कम जानोगे फायदे में रहोगे। वक्त तेजी से बीत रहा है। अंधेरा छुटने से पहले हमें वापस जाना है। 5 बक्से तो आपके हुए, फिर भी पता चले कि कौन लोग और कितने लोग मुलविस हैं। कल को भी हमारी जान को फिर कोई आ गया तो हम किस किस का मुंह भरेंगे? इसने बड़े पते की बात कही। इसे मुतमईन करना जरूरी था। मैंने कहा, हमारा ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से। इसने मेरी बात काटी। CIA से? मैंने कहा, हाँ। एक SP साहब की सरबराही में पूरी टीम है। SP साहब ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है। तुम फिक्र ना करो, हमारे बाद कोई और नहीं आएगा। बस 2-4 महीने बाद खुद ही कुछ पहुंचा दिया करो। ओह, 2-4 महीने क्या, मंथली बांध देंगे। सज्जनों के सज्जन हैं हम, इसने खुश दिली से कहा। और फिर सवाल था, SP साहब का नाम क्या है? हमारी भी हर जगह अच्छी जान पहचान है। मैंने रुखे लहजे में कहा, आम खाने हैं या पेट गिनने हैं? इसने जल्दी से दोनों हाथ उठाए। सज्जन जी, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हो। साथ ही इसने साईं को इशारा किया। साईं ने फौरन ही गत्ते की पेटी खोली। इसमें $100 वाली गड्डियां निकालने लगा। यह मंजर मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। सुना था कि डॉलर्स भी इंडिया स्मगल होते हैं, आज देख भी लिया। साईं ने गड्डियों का ढेर सा मेरे सामने लगा दिया। चौधरी बोला, 5 बक्सों से ज्यादा ही है, ये ले जाओ और मलक गुलशेर की बेटी को भूल जाओ। मैंने जान बूझ कर तजब्जुब का मुजाहरा किया। इस दौरान मैंने देख लिया कि इन लोगों के तने आसाब ढीले पड़ गए हैं। मुझे महसूस हुआ कि मैं बाजी मजीद अपने हाथ में कर सकता हूँ। एक आध गोली चलाने का रिस्क लिया जा सकता था। उम्मीद थी कि गोली की आवाज तय आने के सबब ज्यादा दूर नहीं जाएगी। इसके अलावा गोली एक तरह से तारिक वगैरह के लिए किसी गड़बड़ का सिग्नल थी, ताकि गड़बड़ का एहसास होते हुए तय आने में उतर सके। मेरा तजब्जुब देखकर चौधरी ने कहा, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बनाओ। मैंने कहा, ठीक है, ये रकम किसी कपड़े में बांध दो। चौधरी के साथ काशिफ के होंठों पर भी गैर महसूस सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इन्हें दौलत की कुव्वत तहरीर पर ज्यादा यकीन हो गया। चौधरी ने मूंछों वाले को तहकुम अंदाज में रकम एक कपड़े में बांधने के लिए कहा। मेरा अंदाजा था कि यह मूंछ वाला ही इश्तिहारी था जो हमारी आमद की इतला लेकर नहर के किनारे से पहले मोटरसाइकिल पर भाग निकला था। फिर जैसे ही इसने AK-47 फर्श पर लटाकर एक बड़ी सी चादर फैलाई, मैंने बर्क रफ्तारी से पिस्टल निकाला और इसकी खोपड़ी में गोली उतार। वो वहीं गिर गया। मेरी इस बर्क रफ्तार हरकत ने सबको लहजे भर के लिए मबूद कर दिया। मैं गिर जा, खबरदार, हाथ सर से बुलंद कर लो वरना मारे जाओगे। माली का हाथ तेजी से बेहद पतली कमर से लटके पिस्तौल की तरफ गया। मैंने बेदरक गोली चलाई। इसके पिस्टल वाले हाथ की यकीनन 1-2 उंगलियां पिस्टल समेत उड़ गई थी। इसने कुराह कर अपने साथी का हाथ थाम लिया।
ठीक इसी वक्त हमजा और असलम बड़े माहिराना अंदाज में नीचे छलांग लगा चुके थे। इनके पीछे तारिक भी सीढ़ियों की मदद से नीचे आ गया। लम्हों में ही सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई थी। आधे घंटे बाद हम तमाम मुजरिमों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भरकर वहां से रवाना हो गए। इन्हें बेरहमी से हमने बांधा था। गायब साईं भी इन लोगों में शामिल था। आस्थाने पर जो 2-3 खवातीन पाई गई थी वो माँ बेटी थी। इन्हें हमजा ने डरा कर अपनी जुबान बंद रखने के लिए कहा और फिर इन्हें वहां से निकाल दिया। रवाना होने से पहले हमने तहखाने से सारे डाले निकालकर दीगर सामान को आग लगा दी थी। हमारी मंजिल महकमा जंगलात का एक रेस्ट हाउस था जिसे हमजा वगैरह ने सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। अगले चंद घंटों में डंडे ने सारे मुजरिमों को कस्बे निकाल दिए थे और इनके अंदर जो कुछ था वो भी सारा बाहर आ गया था। साईं भी इनका मुकम्मल तौर से शरीक कार था। इसकी वजह से भी एहलाक सोच वीडियोस के लिए खवातीन को मुंतखब किया जाता। काशिफ की जब पाँव की 2 उंगलियां काटी गई तो इसने मुकम्मल तौर पर से हथियार डाल दी। इसने अपना मोबाइल फोन मांगा। फिर 2 घंटे के अंदर ही मलक गुलशेर की बेटी पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच गई। शाम को मैंने खुसूसी तौर पर जेनिफर को वहां बुलाया। फायजा पहले ही आ गई। मलक गुलशेर जिंदा बच गया था और वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में था। इसके होश में आते ही हम इसे बेटी की बाजियाबी खुशखबरी सुनाना चाहते थे। मंजर एक हाल कमरे का था जिसमें बाकायदा एक आर्जी फांसी का बनाया गया था। मेरे तारिक, फायजा और जेनिफर के अलावा हमजा और असलम भी इस कमरे में मौजूद थे। थोड़ी देर में गुल हमीद साहब की खुसूसी आमद मुतवक्किल थी। फांसी काट के सामने रोशनी का माकूल इंतजाम था और एक स्टैंड पर जदीद किस्म का छोटा सा कैमरा नस्ब था। थोड़ी देर में ऊंचे लंबे बारों सफेद मूंछों वाले गुल हमीद साहब तशरीफ ले आए। हमसे वो बड़े इत्तेफाक से मिले और मुजरिमों के बारे में इन्हें तारिक ने तफसील से ब्रीफ कर दिया। भारत स्मगलिंग करने के लिए चौधरी सलामत ने जो लाखों डॉलर स्टोर किए थे, इनमें से हमारा इरादा जरूरतमंदों में वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने का था। ये जानकर हमीद गुल साहब बहुत खुश हुए और इस बारे में उन्होंने हमें मुकम्मल एहतियात दे दिया। इसके बाद फैसले की घड़ी आ गई। तमाम मुजरिमों को हाल में लाकर इनके गलों में फंदे डालकर लकड़ी के स्टूलों पर लटका दिया गया। इनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। इसके बाद मैं मुकम्मल स्याह लिबास और निकाब में कैमरे में आ गया। कैमरे की रेंज से दीगर लोग हट गए। इसके बाद मैंने बदली हुई आवाज़ से इनके इंसानियत सोज मजालिम और जराइम बताने के बाद कहा, मुझे और मेरे चंद साथियों को आप खुदाई फौजदार कह सकते हैं। यही हमारा तारुफ है। इन जालिमों को हम कानून के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। अच्छा ये है कि ये लोग कानून के मजबूत हाथों को कमज़ोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके 10 जुल्म का शिकार होने वाले लवाहिकीन की फौरी शोई भी ज़रूरी है। इस वक्त मैंने देखा कि आसिफ जलाल को हथकड़ी लगाकर वहां लाया गया। इससे सारी बात थोड़ी देर पहले फायदा ने फ़ोन पर बताई थी। अपने मुजरिमों की गिरफ्तारी और फौरी सजा की खबर ने इसे निहाल कर दिया था। वो दूर से लाया गया था, इसलिए इसे आने में ताहिर हो गई थी। आसिफ जलाल की हथकड़ियाँ खोलकर इसे भी मेरी तरह का लिबास और नकाब पहनाया गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। इसलिए इन दरिंदों को फौरन फांसी पर लटकाने का फैसला हुआ है। आज हर जालिम ये बात कान खोलकर सुन ले कि जिसने ताकत के नशे में किसी पर जुल्म ढाया और कानून इसका कुछ ना बिगाड़ पाया, तो फिर वो खुद को जल्द यहाँ इस मौत के स्टूल पर खड़ा देखेगा। ये जुल्म डालने वाले से खुदाई फौजदार का वादा है। मेरे इशारे पर आसिफ जलाल आगे बढ़ा। मैंने कैमरे के सामने कहा, दिगर कई हंसते बसते घर उजाड़ने के साथ साथ इन दरिंदों ने इस शख्स का भी घर उजाड़ा था, इसलिए इन दरिंदों को फांसी देने के लिए इसे बुलाया गया। आसिफ जलाल कैमरे के साथ में आ गया। इसने आगे बढ़कर बारी बारी इन दरिंदों के नीचे से स्टूल खींच लिए। वो दरिंदे सूली पर लटक कर दम घुटने की अजियत से तड़पने लगे। आसिफ जलाल एक तरफ खड़ा होकर इन्हें देखने लगा। मैंने इख्तितामी जुमला कहा, हर जालिम और खुद को कानून से बालातर समझने वाला इन दरिंदों के अंजाम से सबक हासिल कर ले, नहीं तो खुदाई फौजदार इनसे ज्यादा दूर नहीं है। ये कहकर मैं कैमरे के सामने से हट गया। दरिंदों की फांसी का मंजर रिकॉर्ड होता रहा। कुछ देर में वो तड़प कर ठंडे हो गए। सबसे आहर में वाली की मौत हुई। औरत होकर वो मासूम बच्चों और औरतों पर जुल्म डालने से बाज नहीं आई थी। कोशिश के बावजूद हम लोग इसके लिए नरमी का जज्बा दिल में पैदा नहीं कर सके। कैमरा बंद करके लाशें उतार कर ठिकाने लगाने के लिए रवाना कर दी। मैंने अपना स्याह लिबास उतारा कि आसिफ जलाल घुटनों के बल मेरे सामने झुक गया। दोनों हाथ बांधकर इसने गुलगुले लहजे में कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कोशिश के बावजूद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसकी तरफ से रुख फेरा। फायदा रोते हुए दौड़ कर आई और मेरे बाजू से लग गई। तारिक की आंखों में भी पानी चमकने लगा। आसिफ जलाल पूरी तरह से बिलखने लगा। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। ऐसा करो, मुझे भी फांसी पर लटका दो। जिंदगी मेरे लिए बदतरीन सजा है। मैंने आंसू साफ करके आसिफ जलाल के कंधों पर हाथ रखा तो इसने चौंक कर सर उठाया। भीगी आंखों के साथ इसके चेहरे के हर नक्श में गुदाज उतरा हुआ था। इसके अंदर का सारा जुनून और वहशत आंखों के रास्ते बह गई थी। वो एक बदला हुआ शख्स था। मुझे इस पर तरस आया। इसने मेरा आशियाँ उजाड़ा था तो इसका आशियाँ भी तो मुझसे पहले उजड़ गया था। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, अपनी तरह का कोई उजड़ा हुआ गुलिस्तान ढूंढो, इसे आबाद करो। इसे आबाद कर लेना तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जाओ, तुम आज़ाद हो। आसिफ जलाल मेरे पैरों से लिपट कर दाढ़े मार मार कर रोने लगा। इसे मैंने वो मुश्किल दूर किया जो वीडियो हमने बनाई थी। कुछ दिनों तक इसे फेक आईडी और बिल्कुल नई डिवाइस के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने का इरादा था हमारा। अगले दिन मैं दिलदार के घर था। इसके बूढ़े बाप से मिलकर मैंने शौकत वाला लिफाफा खामोशी से इसके सुपुर्द करते हुए कहा, चाचा ये दिलदार के बच्चों की इमारत है, इसे संभालो। इसने बड़ी हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, चाचा थोड़ी सी बात को समझना, दिलदार से एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया था। इस जुल्म की माफ़ी नहीं थी। वो शायद कभी लौट कर ना आए। कपकपाते हाथों से लिफाफा संभालने वाले की आंखें भर आ गई। इसने गालिबन कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, फिर होंठ सख्ती से भींच लिए। मैंने रवाना होते हुए कहा, कल हम मेहमान हैं तुम्हारे, मेरे साथ
कुछ और लोग भी होंगे। इस बुजुर्ग ने आंसुओं का घूंट भरकर कहा, खुदा की रहमत से भला कैसा इनकार। अगले दिन फायदा, तारिक, जेनिफर और शाहिदा अफंदी के साथ मेरी खसूसी दरखास्त पर हमजा और असफंद यार भी इस गरीब खाने पर खाने के लिए आए। हमारे लिए उन्होंने खसूसी एहतमाम किया था। मीठे चावल जिनमें हुलूस की खुशबू भी थी। खाते हुए मैंने इधर उधर निगाह डाली। दिलदार के बच्चों के पैरों में नए जूते नजर आ रहे थे। वो नए खिलौनों से खेलते हुए खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। सबसे छोटे बच्चे के हाथ में मुझे सेब भी नजर आया। दिलदार की बीवी के सर पर आज फटी हुई ओढ़नी की बजाय नई चादर थी। चाचे की आंखों में भी एक शफाफ शीशों वाला चश्मा नजर आ रहा था। एक मकामी डॉक्टर घर आया था दिलदार की मां के इलाज के लिए। एक उजड़े चमन पर थोड़ी सी बहार देखकर सीने में लगी आग कदरे मध्यम महसूस हो रही थी।